Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear learners, I hope you will be safe and sound. So, for today's lecture, I have chosen a topic: kinds of adjective. Kinds of adjective. Different books contains different types of adjectives. I'm studying Exploring English, which is a bulky book of English grammar, and Reen and Merton's High School English Grammar and Composition. Both the books are very authentic books. So I have chosen some of the kinds, some of the types of adjective, in which the first one is demonstrative adjective. The first type is demonstrative adjective. जो पहला टाइप है वो क्या है? वो है demonstrative adjective. Is you know about demonstrative pronoun? अगर आप लोग demonstrative pronouns के बारे में जानते हैं, जैसे this and that, both are now demonstrative adjective. This and that, this and that are demonstrative adjective. क्या है? ये दोनों जो हैं ये हमारे demonstrative adjective हैं. Demonstrative adjective. ये दोनों क्या हैं? ये दोनों हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं. नाउन के तौर पर अगर हम इसे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ले लेते हैं तो दिस जो है ये क्या है? इट पॉइंट्स आउट अ थिंग विच इज प्लेस्ड नियर टू अस. मतलब कि दिस उन चीज़ों को पॉइंट आउट करता है जो हमारे करीब होते हैं. दैट उन चीज़ों को पॉइंट आउट करता है जो हमसे दूर होते हैं. इज अ प्रोनाउन अगर हम इसको ले लेते हैं. बट वी आर टॉकिंग हियर अबाउट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. सो दिस एंड दैट आर द डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हियर. नाउ दीज is the plural form of this and those is the plural form of that. So this can be used to a single thing which is placed near to us, and these can be can be used to a things more than one and near to us. That जो है वो उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है जो हमसे दूर होते हैं, सिंगल होता है. Those उन चीज़ों के लिए जो हमसे दूर भी होते हैं और बल्कि क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं. So we can call it demonstrative adjective because they point out the things. हम इसको demonstrative adjective इसी वजह से कहते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं? क्योंकि ये point out करते हैं, क्योंकि it shows us various things. ये क्या करता है? ये हमें मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो दिखा देता है. इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कह देते हैं. ठीक है. फिर कहते हैं it always answer which one. ये क्या करता है? ये हमेशा के लिए which one जैसे क्वेश्चंस अगर होते हैं तो उनको क्या करता है? उनको आंसर करता है. ठीक है. हमें क्या करता है? हमें आंसर दे देता है. फॉर इंस्टेंस अगर मैं क्या करूं? फॉर इंस्टेंस लेट्स टेक दिस बर्गर. Let's take this burger and read that book later. ठीक है. अब इसमें देखें
Here we have two terms, one is called this and the other one is called that. Both are demonstrative adjectives. Both are demonstrative adjective. This refers to the burger which is near to us, and that refers to the book which is read that book later, which is distant to us. जो कि क्या है, जो कि हमसे दूर फासले पर पड़ा है, तो उसको रेफर किया जा रहा है. नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव, okay, this boy is stronger than Ali. ठीक है. अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इसको हम एडजेक्टिव क्यों कहते हैं? बिकॉज दिस इज यूज, दिस टर्म दिस हैज बीन यूज्ड बिफोर दिस नाउन बॉय. इसी वजह से हम इसको एडजेक्टिव कहते हैं, क्योंकि ये इस नाउन बॉय से पहले यूज हुआ है. Here if you observe, here if you see, this term this has been used before this noun burger, and there this term that was used has been used before book, which is actually the noun. So this and that, when this and that placed before a noun, then they will perform the role of an adjective, and it will be known as demonstrative adjective. Then we have these lemons. These lemons are sour. These lemons are sour. Now this one is demonstrative adjective. क्या है? ये हमारे पास demonstrative एडजेक्टिव है. हम इसको देखो, इसके दरमियान इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम इसको एडजेक्टिव्स क्यों कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्यों कहते हैं? बिकॉज जो कि इसी वजह से हम कहते हैं, जब ये किसी नाउन से पहले आ जाते हैं, मतलब किसी नाउन से पहले यूज हो जाते हैं, दे यूजुअली क्वालिफाई द नाउन, दे यूजुअली डिस्क्राइब द नाउन. दैट इज व्हाई वी कैन कॉल इट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. इसी वजह से हम क्या कहते हैं? हम इसको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं. जी, सेकंड टाइप ऑफ एडजेक्टिव इज क्वालिटेटिव और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव. क्वालिटेटिव और डिस्क्रिप्टिव adjectives. Qualitative or descriptive adjectives. Qualitative or descriptive adjectives, it usually shows the kind or quality or quality of a person or and a thing. ये आम तौर पर क्या करता है? ये आम तौर पर किसी शख्सियत, किसी चीज की क्वालिटी या काइंड को जाहिर करता है. ठीक है. इट यूजुअली आंसर्स ऑफ व्हाट काइंड. ये क्या करता है? ये इस किस्म के क्वेश्चंस को आंसर करता है ऑफ व्हाट काइंड, के किस किस्म का, किस क्वालिटी का है, इस किस्म के उसको क्वेश्चंस को आंसर करता है. ठीक है. इट एड्स सम क्वालिटी और स्टेट, इट एड्स सम क्वालिटीज और state to the noun. ठीक है. ये नाउन को क्या करता है? नाउन के क्वालिटीज, नाउन में कुछ क्वालिटीज को ऐड करता है या कुछ स्टेट्स को ऐड करता है. दैट इज व्हाई वी कॉल इट क्वालिटेटिव और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव. फॉर इंस्टेंस,
For instance, I have noted some of the example. He is an honest man. He is an honest man. He is an honest man. Now, if we think over this example, he is an honest man. This example contain one of the words which is honest. जो क्या है? जो कि honest है. And this honest qualify this noun man. क्या कर रहा है? ये जो honest है ये इस noun को qualify कर रहा है. And this honest shows the quality of a man. It shows the quality of a man. It shows the kind of a man. ये क्या कर रहा है? ये इंसान की क्वालिटी को जाहिर कर रहा है. That is why we call it qualitative adjective or descriptive adjective. It describes that man. And second example, the foolish old crow tired to sing. The foolish old crow tried to sing. Now, there are two adjectives. One is foolish and the other one is old. Other one is old. Both the adjectives foolish and old shows the quality of the crow. Both foolish and old shows the kind of crow. क्या कर रहा है? इस crow की इस जो ये कौवा है उसकी जो quality है उसको वो क्या कर रहा है? Show कर रहा है. So we can call it qualitative or descriptive adjectives. Second, we have जी जो हमारे पास थर्ड टाइप है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव और न्यूमेरल एडजेक्टिव, जो कि हमारे पास क्या है? थर्ड है क्वांटिटेटिव और न्यूमेरल एडजेक्टिव. ये क्वांटिटेटिव या न्यूमेरल दोनों का क्या है? दोनों का सेम नेम है. ठीक है, मतलब एक जैसे उसकी जो है एडजेक्टिव के दो नेम्स हैं. देखिए, इट टेल्स ऑफ क्वांटिटी. फर्स्ट ऑफ ऑल इट टेल्स ऑफ क्वांटिटी. क्या करता है? सबसे पहले ये क्वांटिटीज के बारे में बात करता है, हमें क्वांटिटीज को जाहिर करके देता है. इट यूजुअली आंसर्स ऑफ क्वेश्चंस सच एज हाउ मेनी, how much, ये क्या करता है? ये इस किस्म के सवालात के हाउ मेनी, हाउ मच जैसे क्वेश्चन जो होते हैं उसका आंसर देते हैं. वी कैन फर्दर डिवाइड दिस क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव इनटू 3 सब डिवीजन. फर्दर डिवाइडेड इनटू 3. इट हैज 3 सब डिवीजन. इट हैज 3 सब डिवीजन. इसको फर्दर क्या किया जाता है? फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. नंबर फर्स्ट डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव. डेफिनेट न्यूमेरल adjective. Definite numeral adjective which denote an exact number, which denote an exact number
जो क्या करता है, जो कि एग्जैक्ट नंबर्स को डिनोट करता है, ठीक है, एग्जैक्ट नंबर्स को डिनोट करता है। इट हैज बीन फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ये फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। इट हैज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में ये फर्दर डिवाइड किया जाता है, ठीक है। नंबर फर्स्ट जो कि सबसे पहला है वो हमारे पास क्या है, वो है कार्डिनल नंबर्स। कार्डिनल नंबर्स, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि कार्डिनल नंबर्स जो हैं ये क्या होते हैं। कार्डिनल नंबर्स इंक्लूड सिंपल काउंटिंग लाइक 1 2 3 एटसेट्रा। इसमें ये जो कार्डिनल नंबर्स हमारे पास है इसमें सिंपल काउंटिंग आती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एटसेट्रा। सिंपल काउंटिंग इंक्लूड्स इन कार्डिनल नंबर। देन वी हैव अनदर टर्म विच इज ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर्स, इसको समझने की जरूरत है। ऑर्डिनल नंबर्स, व्हाट इज ऑर्डिनल नंबर्स? इट इंक्लूड्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एटसेट्रा। इसमें क्या होता है, इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एटसेट्रा इंक्लूडेड है। देखिए जो कार्डिनल नंबर है इट ओनली शोज हाउ मेनी, it shows cardinal numbers, number shows how many, it just tells the quantity of things. Cardinal numbers shows how many, it just tells the quantity of something, while ordinal shows the order of the things, the series of the things. यहाँ पर समझने की कोशिश करें कि कार्डिनल नंबर्स जो है उसमें 1 2 3 4 5 6 7 वगैरह इंक्लूड है। ये हमें ये दिखाता है हाउ मेनी थिंग्स, हाउ मेनी ऑफ समथिंग, ठीक है। और कार्डिनल नंबर्स जो है वो क्या करते, ऑर्डिनल नंबर्स में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वगैरह शामिल है, और ऑर्डिनल नंबर्स हमें क्या दिखाता है, हमें ये ऑर्डर ऑफ द थिंग्स, ऑर्डर ऑफ द थिंग्स और सीरीज ऑफ द थिंग्स जाहिर करके देता है। इसके बाद जो है, इसके बाद हमारे पास क्या है, सेकंड जो है, सेकंड हमारे पास जो सेकंड सब डिवीजन है वो है हमारे पास इंडिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव। क्या है? इंडिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव। indefinite numeral adjective। इंडिफिनिट जैसे कि नेम से जाहिर है, जैसे डेफिनेट में हमें क्या दिखाया जा रहा था, एग्जैक्ट नंबर दिखाया जा रहा था। इन इट विच डू नॉट डिनोट एग्जैक्ट नंबर। डिनोट एग्जैक्ट नंबर, ये क्या करता है, ये हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं दिखाता। आई विल लिस्ट डाउन सम ऑफ इंडिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स। फॉर एग्जांपल ऑल, all, many, few, several, any, certain, and sundry are the indefinite numeral adjective। इसमें एग्जैक्ट नंबर्स जो हैं वो गिवन नहीं है। ऑल, मैनी, फ्यू, सेवरल,
any, certain or sundry, etc. These are not the exact number. ये exact number नहीं है. ये क्या है? ये exact number नहीं है. Then we have distributive numeral adjective, which is the third subdivision. Distributive numeral adjective. Distributive numeral adjective. It refers to each one. For example, it refers to each one of the numbers. Each one of the numbers. For example, each, every, either, and neither. Neither are the distributive numeral adjective. So, dear learners, we have come to the end of our today's lecture. We have discussed various kinds of adjective, but kinds of adjectives are not completed yet. We will discuss them in detail in the future lectures. We have discussed demonstrative adjective, and then we have discussed qualitative and quantitative adjectives. At the end, we have discussed the certain three subdivisions of quantitative or numeral adjectives. So, dear learners, I hope you have got a little bit about the types or kinds of adjectives. If there is any question, you can ask it freely. Your questions will be answered. Thank you. Thanks a lot.